everyone, welcome back to my channel. Hope you all are doing well. So after a very long time मैं मेरे चैनल पर PCOS के बारे में बात करने वाली हूँ. So it's been a while I've been struggling with it and मैं इसको अभी successfully manage कर पा रही हूँ. So I just thought कि मैं आपके साथ भी share कर दूँ. So if you're interested to know how am I dealing with it, then please keep on watching this video. And अगर ये useful लगे, then don't forget to hit the like, share and also the subscribe button. So yeah, now let's get started. So yeah guys, before getting into the video, I really wanted to share because I know कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि PCOS क्या है, because मेरे friends को तक नहीं पता ये किस चिड़िया का नाम है. So basically it's a metabolic and also a hormonal imbalance का disorder जिसमें आपकी body बिल्कुल भी normally perform नहीं कर पाती है, and especially in women ये होता है, it does not happen to men. And ये तब होता है जब आपकी ovaries के आसपास बहुत सारे cysts हो जाते हैं, यानी कि जो छोटे छोटे गोल गोल fluid sac जैसे सिस्ट हो जाते हैं आपके ओवरीज पे, एंड तभी आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है. फिर आपको बहुत ज़्यादा एक्ने आने के चांसेस होते हैं, एंड जितने भी आपके फेमिनिन फीचर्स होते हैं वो कम हो जाते हैं बिकॉज आपके बॉडी में एक्सेस मेल हार्मोन्स हो जाते हैं. सो या बेसिकली ये है PCOS का इशू, एंड इट इज़ वेरी डिस्टर्बिंग नॉट ओनली फिजिकली बट ऑल्सो मेंटली. ये बहुत ज़्यादा हर्टफुल होता है लड़कियों के लिए. नाउ टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, तो मुझे PCOS डिटेक्ट हुआ था इन द ईयर 2018, एंड मुझे भी ऐसे नहीं पता था कि मुझे PCOS है जब मेरा मेंस्ट्रुएशन साइकिल कुछ 45 to 60 डेज के लिए डिले हो चुका था. That is when I decided to visit a gynac, and just by looking at my face she told me कि आपको I think PCOS है, because वो अपने experience के basis पर मेरी symptoms देख के बता रही थी, and therefore she told me कि फ़िलहाल मैं आपको कुछ भी medication नहीं दे सकती. You just have to go and do a USG pelvic, which is basically nothing but एक sonography report आपको लानी है ताकि आपका जो PCOS का confirmation है वो उसके थ्रू उनको मिल जाए. And in the meantime उन्होंने मुझे explain किया कि मुझे बहुत सारे lifestyle changes करने चाहिए, and since she was not sure what's the reason behind the delay of my menstrual cycle, इसीलिए उन्होंने मुझे कोई ऐसे birth control pills वगैरह नहीं दिए, which is a blessing because usually इंडिया में ऐसा होता है if you go to a gynac तो वो वो 21 days वाली birth control pills usually दे देते हैं without even blindly checking. So I was fortunate in that situation. Now after taking the doctor's advice, मैं चली गई थी अपना USG pelvis कराने के लिए next day, and yes it was detected right then and there because technician को भी पता चल जाता है, तो उन्होंने मुझे बता दिया था that I have number of cysts and they are very tiny, they are not big, which I was very relieved because जितना बड़ा cyst होता है उतनी ज़्यादा problems आपकी increase होती है. So after a while I took the reports same day doctor के पास, and what she did was she started advising me the same thing as any other doctor would कि आपका जो भी है lifestyle उसको आपको बहुत better बनाना पड़ेगा. You will have to substitute your regular food items, और जो आइटम आप ज़्यादा binge eating करते हो, especially sugars and excessive carbs जो आप खाते हो, you will have to cut down on that and start exercising regularly. And now after getting this diagnosis from my gynac, what she did was she gave me vitamin D3 के pills which are normally given to any girls जो भी vitamin D के लिए उनकी deficiency होती है. So उन्होंने मुझे वो दिया, and there was this another thing which was called inositol का sachet. So basically it is nothing but a form of vitamin B, उसको ट्रैक्निल बोलते हैं. So उसको आपको डेली कंज्यूम करना होता है आफ्टर हैविंग योर फूड, एंड दैट हेल्प्स यू रेगुलराइज योर मूड स्विंग्स. एंड नाउ आफ्टर गिविंग ऑल ऑफ दैट, तो मेरी डॉक्टर ने मुझे बोला था यू हैव टू कम बैक लाइक आफ्टर 15-20 days एंड यू हैव टू वेट टिल यू गेट योर मेंस्ट्रुएशन साइकिल ऑफ द मंथ. एंड ये मुझे इसीलिए उन्होंने बोला था बिकॉज मैंने उनको स्पेसिफिकली बताया था कि मेरा मेंसेस आज से पहले कभी भी डिले नहीं हुआ है. सो यू ऑल्सो हैव टू गिव देम द राइट इन्फॉर्मेशन. अगर आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल बहुत इरेगुलर है देन यू हैव टू टेल देम वेरी ऑनेस्टली अबाउट इट. There is nothing to be ashamed of. तो मैंने उनको बताया, and she said since your menstrual cycle is regular, हम तुम्हें कोई और tablets नहीं देंगे. You just have to start exercising and also you have to take care of your body. So guys, after these instructions I went back home. I started exercising regularly, taking the medications that she had given, and definitely मेरा chums जो है वो I guess 7 days में आ चुका था. मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा था बिकॉज एज आई सेड मेरा मेंस्ट्रुएशन साइकिल इतना डिले नहीं होता था यूजुअली. सो मेरा मेंस्ट्रुएशन आ गया, एंड आई वाज कंटिन्यूइंग वॉट एवर इंस्ट्रक्शंस शी हैड गिवन फॉर अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम. तो विद इन अ मंथ और 2 आई स्टार्टेड लूजिंग वेट. सो बेसिकली व्हेन आई वेंट टू सी हर तब मेरा वेट 73 kgs हुआ करता था, विच वॉज एक्सेसिव देन माई BMI. मेरे BMI से मेरा मैक्सिमम वेट होना चाहिए 65 kg, उससे ज़्यादा नहीं. सो आई वॉज एक्चुअली ओवर वेट
weight when I visited her. So जब मैंने ये सारी medications and instructions follow करना start किया तब मेरा weight I guess 67 या 68 तक आ चुका था. So now after following the doctor's instruction and losing weight, एक ऐसा time आया था after 2 to 3 months I thought कि चलो अभी थोड़ा थोड़ा खुद को treat दे सकते हैं because I'm on the right track. And यहीं पे मैं थोड़ा गलत चली गई because after starting to eat again cheat meal के time पे I started binge eating again. पता नहीं वो थोड़ा थोड़ा कभी से नॉर्मल तरीके से मैं दोबारा खाने लग गई. एंड देन जब मेरा वेट बढ़ा तो विद इन 1 ईयर मेरा वेट 68 से सीधा 86 हो गया था. तो इमेजिन ऑलमोस्ट 20 kgs आई हैड पुट ऑन इन दैट अमाउंट ऑफ टाइम. एंड तभी मैं दोबारा से इनएक्टिव हो गई एंड बिल्कुल भी मेरे को मोटिवेशन नहीं लगता था. ऐसा लगता ही नहीं था दैट आई शुड गेट अप फ्रॉम माई बेड. एंड अनदर डीमोटिवेशन वॉज कि इतने सारे अच्छे अच्छे क्लोथ्स मेरे को फिट नहीं आते थे. सो आई यूज्ड टू फील लाइक आई एम लुकिंग द अगलीस्ट ऑफ ऑल माई फ्रेंड्स एट्सेट्रा. सो ये काफ़ी ज़्यादा मेंटली भी मुझे चैलेंजिंग लगता था. तो आई डेफिनेटली डिसाइडेड दैट व्हाट इट्स टाइम नाउ आई नीड टू वर्क ऑन माई सेल्फ अगेन. सो मिड 2019 में मैंने क्या किया कि मैं एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास चली गई. सो बेसिकली एंडोक्राइनोलॉजिस्ट वो डॉक्टर्स होते हैं जो आपके हार्मोनल लेवल पे आपको हेल्प करते हैं. So the one that I went to, she actually directly gave me something called as metformin. Now ये जो मेडिसिन होती है ये आपको तब दी जाती है जब आपका इंसुलिन का इशू होता है, जब आपकी बॉडी इंसुलिन प्रॉपरली बना नहीं पा रही या प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं कर पा रही. सो दैट इज़ व्हेन शी गेव मी मेटफॉर्मिन एंड बेस्ड ऑन नो टेस्ट व्हाटसोएवर शी जस्ट टोल्ड मी कि आप ये मेटफॉर्मिन का मेडिसिन लो एक आफ्टरनून में आफ्टर योर लंच एंड एक डिनर में आफ्टर योर डिनर, मतलब खाना खाने के बाद. So I started taking those medicines, and when I asked her that how is she directly giving it to me, so she was like I've treated a lot of patients, उनको भी यही सारा ही इशू होता है. बेसिकली इंसुलिन रेजिस्टेंस इज द ओनली इशू दैट PCOS patients have, which is actually wrong guys because there are different kinds of PCOS also. मैं उनका टाइप्स आपको स्क्रीन में दे दूंगी so that you will be able to differentiate what kind of PCOS you have. So तभी मैंने इतना ज़्यादा रिसर्च नहीं किया था and therefore I trusted the doctor blindly, started taking the metformin medicine, which actually is not bad, but in the long run it did not help me. Now after almost 4 से 5 महीने में मेरा वेट काफ़ी कम हो गया. So imagine I went down from 86 to 75 kgs and that is when I started feeling kind of fitter. And मुझे ये medicines कुछ 3 महीने के लिए दी थी and within that less amount of time I ended up losing around 10 kgs. So I was kind of very happy about it. So once you start losing your weight, so again मेरा वो behavior शुरू हो गया that I started binge eating या थोड़ा बहुत इधर उधर cheat day करना शुरू कर दिया. But this time I was very careful कि मैं इसको excessively ना repeat करूँ so that all my weight doesn't come back. So even after following the doctor's lifestyle instructions etc. I started putting on weight again for some reason. So after 76 kgs I once checked my weight because मेरे पास एक weighing scale है. Also it's a good practice कि आपको weighing scale definitely आपके पास रखनी चाहिए, otherwise you will never know कि आपके body के साथ क्या हो रहा है. You might look fit from outside but अगर आपका weight ही excessive हो तो आपको नहीं पता चलेगा. सो मैंने जब मेरा वेट चेक किया देन आई फाउंड आउट दैट मेरा वेट 76 से अगेन 80 kgs हो गया था एंड दैट वाज अगेन अलार्मिंग फॉर मी. एंड दिस हैपेंड विद इन अ स्पैन ऑफ 1 month ओनली आफ्टर स्टॉपिंग दैट मेटफॉर्मिन. सो आई इनिशियली थॉट कि लेट मी जस्ट रिकॉल व्हाट एम आई डूइंग रॉन्ग, मैं क्या ज़्यादा खा रही हूँ, क्या कम खा रही हूँ, एम आई नॉट फॉलोइंग द कैलोरी चार्ट प्रॉपरली एट्सेट्रा. And then there was this one article that I came across कि metformin does help you to lose weight but only for a certain period of time because वो आपकी इंसुलिन को रेगुलराइज कर तो देता है for that time period but उसके बाद you get back to the normal issue whatever it was. So that is what exactly happened with me. सारे effects मेरे reverse हो चुके थे. Now after this issue I was very scared and I did not go back to the doctor actually because मुझे वो first time में ही weird लगा था कि without doing any test she is just giving me this metformin and I am someone जिसको ये सब hormones के बारे में थोड़ी बहुत knowledge है because I have also learned biotechnology. मैंने साइंस में मेजर बायोटेक्नोलॉजी में किया so I knew कि there is something wrong that she is doing but then I was like चलो if she is really telling me इतना confidently तो of course she is a doctor, she is much more educated than I am तो definitely वो right ही बोल रही होगी.
तो आई डिसाइडेड टू कंटिन्यू एंड दिस इज़ वॉट हैपेंड एंड देयरफॉर आफ्टर दिस एपिसोड और भी चीज़ें होने लग गई. आई स्टार्टेड मेंटेनिंग माई लाइफ स्टाइल एंड डूइंग इट बेटर. तो बहुत धीरे 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 मेरा वेट कम होना शुरू हो गया. लाइक इट वेंट बैक टू 80 से लेकर 77 76 तक दोबारा आ गया. एंड देन अगेन वॉट हैपेंड वॉज देयर वर सम अदर इशूज दैट स्टार्टेड शोइंग अप. नाउ इफ यू समवन हु हैज PCOS then you would know there is a condition called as hirsutism which happens to women, which is basically कि आपके बहुत सारे जो बाल होते हैं फेस पर वो थिक ग्रो होना शुरू करते हैं, ऑलमोस्ट बियर्ड लाइक. एंड इन माई केस ये होना शुरू हो गया. सो देयर वर 1 or 2 hair on my mustache area, upper lips area, and there were many hair on my chin area. तो मैं क्या करती थी, मैं यूजुअली प्लक करती थी उसको. 1-2 दिख गया तो आई स्टार्टेड प्लकिंग इट यूजिंग अ ट्वीज़र और मे बी समटाइम्स एपिलेटर वगैरह यूज़ करती थी या समटाइम्स शेव कर देती थी. सो मेरे इतने नोटिस में नहीं आ रहा था वो कि मुझे वो 1-2 नहीं, मुझे 1-2 जाने के बाद और 3-4 दिखते थे. तो आई यूज टू प्लक इट. तो मैंने कभी नोटिस ही नहीं किया कि वो 1-2 नहीं, वो काफ़ी सारे थे. सो देयर वाज दिस वन टाइम जब ये प्लकिंग कॉन्स्टेंट करते करते ना माई चिन स्टार्टेड गेटिंग वेरी डार्क एंड दैट इज़ व्हेन आई स्टार्टेड नोटिसिंग कि मैं इसको इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंटली प्लक कर रही हूँ एंड दे आर नॉट कमिंग ऑन द सेम पोजिशन विच मीन्स आई एम गेटिंग टू मैनी बियर्ड लाइक है. सो आई वंस डिसाइडेड कि मैं इनको कम्प्लीटली ग्रो होने देती हूँ एटलीस्ट फॉर 2 to 3 weeks बिकॉज विद PCOS यू हैव टू कॉन्स्टेंटली कीप ऑन शेविंग योर फेस लाइक 3 से 4 दिन में या मे बी वैक्सिंग वट एवर यू गाइज प्रिफर. तो दैट इज़ वॉट आई वॉज डूइंग एंड आई थॉट कि लेट मी जस्ट स्टॉप डूइंग दिस एंड देन आई विल नो कि कितने हेयर ग्रो होते हैं मुझे ऐसे. एंड दैट्स व्हेन आई नोटिस्ड कि मुझे कम से कम 12 से 15 हेयर ग्रो होना शुरू किया था. तो इमेजिन जब 2 से 3 थे इट हैज़ मल्टीप्लाइड टू 10 to 15. तो मेरा स्टेट ऑफ माइंड कम्प्लीटली बिगड़ चुका था. आई यूज टू लिटरली स्लीप एंड नॉट वेक अप. आई यूज टू फील लाइक यू नो व्हाई इज दिस हैपनिंग विद मी. इमेजिन आपके फेस पर सारे यू नो ऐसे सारे सिम्टम्स दिख रहे हैं जिससे आप काफ़ी मैनली दिख रहे हो. एंड देन ये मेरे लिए बहुत एम्बैरेसिंग भी लगता था एट टाइम्स बिकॉज आई यूज टू गो आउट विथ माई फ्रेंड्स एंड देन आई हैड टू एक्सप्लेन देम अबाउट द होल PCOS का सिचुएशन कि भाई PCOS में ऐसा होता है कि मेल हार्मोन्स एक्सेसिव हो जाते हैं वगैरह. सो यू नो एट वन पॉइंट आई थॉट कि आई हैव टू डू YouTube एंड आई कैन नॉट डू विद दिस काइंड ऑफ सिचुएशन. सो आई डिसाइडेड दैट आई विल गो एंड सी अ डर्मेटोलॉजिस्ट. एंड ऑनेस्टली गाइज आई ऑलरेडी न्यू कि ये जो हर्सिटिज्म है इसका एक ही इलाज है विच इज़ लेज़र ट्रीटमेंट एंड दैट इज़ ऑल्सो नॉट परमानेंट. इफ़ यू नो एनीथिंग अबाउट लेजर्स तो दे आर नॉट परमानेंट. इट इज़ कॉल्ड एज लेज़र हेयर रिडक्शन एंड नॉट परमानेंट रिमूवल. सो आई न्यू कि मुझे 4-5 साल के बाद मे बी दोबारा वापस आ सकते हैं ये बाल और मे बी 1-2 साल में भी हो सकता है. एंड देयरफॉर आई हैड टू ट्रीट दिस सिचुएशन फ्रॉम द रूट कॉज. सो व्हाट आई डिड वाज फर्स्ट आई वेंट टू माई डर्मैट एंड उन्होंने मुझे ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की कि हाउ लेज़र वर्क्स वगैरह. एंड उससे भी ज़्यादा उन्होंने स्ट्रेस किया दैट यू नीड टू सी अ गुड एंडोक्राइनोलॉजिस्ट जो आपके हार्मोन्स को बैलेंस में लाए. देयरफॉर आपका ये जो सिचुएशन है ये लेज़र पे डिपेंडेंट ना हो, इनफैक्ट ये अंदर से करेक्ट हो जाए. एंड ही वॉज एब्सोल्युटली राइट एंड आई ऑलरेडी न्यू कि एंडोक्राइनोलॉजिस्ट आर मेंट टू यू नो कंट्रोल योर हार्मोनल इम्बैलेंसेस. तो आई डिसाइडेड कि मैं पहले इनसे ये कंसल्टेशन ले लेती हूँ एंड देन आई विल गो एंड सी एन एंडो. तो उन्होंने उससे पहले भी मुझे एक और चीज़ एडवाइस की कि वो एक टेस्ट का प्रोफाइल लिख कर दे रहे हैं. ये सारी हार्मोन्स के टेस्ट आप पहले ही करा लो ताकि आपका और टाइम ना वेस्ट हो. आप ये सारी टेस्ट करा लो, आप अपना अल्ट्रासाउंड दोबारा करा लो, आपके सिस्ट के साइज देखो एंड उसमें कितना फ्लूइड है वो भी पता चल जाएगा आपको. सो द वेरी नेक्स्ट डे ऑन हिज एडवाइस आई वेंट टू द लैब एंड आई गॉट माई टेस्ट डन. तो सबसे पहले ये सारी टेस्ट होती है ना, ये थोड़ी स्पेशलाइज टेस्ट होती है. Therefore they are very expensive. Like he already told me कि आपको 10 से 15 हज़ार तो खर्च करने ही पड़ेंगे for these tests. इसीलिए उन्होंने 1-2 टेस्ट कम करके दी थी but I ended up still spending around 12,400 for these tests. एंड आफ्टर डूइंग दीज टेस्ट मैंने सारे टेस्ट के रिपोर्ट्स खुद ही चेक किए. आई नो कि वहाँ पे रेंज लिखा होता है नॉर्मल है या क्या है. एंड आई सॉ कि मेरा बस एक ही हार्मोन ऐसा था जो बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिवली हाई था विच वॉज प्रोलैक्टिन. नाउ ये जो हार्मोन है ये उनमें हाई होता है जो लोग ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हो. तो स्पेशली जो विमेन आफ्टर गिविंग बर्थ ब्रेस्ट फीडिंग कर रही होती है उनमें ये हार्मोन एक्सेसिवली हाई होता है.
सो आफ्टर गेटिंग द रिपोर्ट्स आई डिडंट वांट टू स्केयर माई सेल्फ इवन मोर, इसीलिए मैंने चुपचाप से बहुत ज़्यादा सर्च करने के बाद पता किया दैट आई विल गो टू द वेरी गुड एंडोक्राइनोलॉजिस्ट. एंड ऑल्सो गाइज एंडोक्राइनोलॉजिस्ट काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं. एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जो भी मैंने PCOS के आज तक वीडियोज़ भी देखे हैं ना इंटरनेट पर, आई हैव ऑलवेज सीन पीपल टॉकिंग अबाउट गोइंग टू अ गायनैक. बट गायनैक के पास आपको तब जाना होता है जब आपको इनफर्टिलिटी इशू हो या आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल डिलेड हो. दैट इज व्हाट दे कैन वर्क ऑन. दे कैन वर्क ऑन योर रिप्रोडक्टिव सिस्टम. दे कैन नॉट वर्क ऑन योर हॉर्मोन्स, राइट. तो इसीलिए आई सर्च फॉर अ गुड एंडो एंड आई वेंट देयर. So she very kindly explained me the whole situation and she was not convinced about the results because normal range जो prolactin का होता है उसका max होता है 25 and मेरा था 70 पे. So she was like इतना abnormally high नहीं हो सकता. I am not convinced about this report. कभी कभार मतलब लैब एरर हो सकता है. सो आपको ये टेस्ट एक और बार रिपीट करनी पड़ेगी. सो आई हैड टू एंड अप स्पेंडिंग अनदर 1000 रुपीज सेपरेटली फॉर गेटिंग द टेस्ट रिपीटेड अगेन. एंड आफ्टर गेटिंग द रिजल्ट आई हैड टू गो बैक टू हर. तो उन्होंने मुझे दोबारा से समझाया कि अभी भी मेरा टेस्ट रिपोर्ट हाई ही आया था, लाइक 43.5 कुछ आया था. बट शी वॉज लाइक इतना होता ही है PCOS वालों को, इतना जो 70 वगैरह आता ना तो आई वुड हैव गिवन यू अ डिफरेंट काइंड ऑफ एडवाइस. तो अभी आपको डरने की जरूरत नहीं है. यू आर स्टिल अंडर कंट्रोल एंड इट कैन बी कंट्रोल्ड. सो शी स्टार्टेड गिविंग मी अ मेडिसिन एंड दिस मेडिसिन बेसिकली वर्क्स ऑन द इशू ऑफ एक्सेसिव हेयर ग्रोथ. So now ये एक steroid है and I'm not going to disclose its name for obvious reasons, but yes, she gave me this steroid. She explained the good effects, the side effects and everything that she could possibly explain this to me, and she told me you have to take this for good 3 months. And also with that of course उन्होंने मुझे lifestyle changes जैसे मेरे गायनेक ने पहले बताए थे वैसे सेम बताए, and that is something that I was already aware of. And after giving me the lifestyle changes उन्होंने बहुत ही अच्छे से मुझे एक डाइट चार्ट भी प्रिपेयर करके दिया. She just told me एक लिस्ट बना के कि these are the things that you need to avoid, and उसमें स्पेसिफिकली एक चीज़ बार बार रिपीट हो रही थी which is मैदा and wheat. यू विल बी सरप्राइज कि आप रोटी खाते हो बट रोटी में बहुत ज़्यादा ग्लूटेन होता है एंड ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकता है एंड आपको ब्लोटेड भी फील करा सकता है. सो शी एक्सप्लेन्ड इट टू मी वेरी काइंडली कि मैदा भी वीट का ही एक फॉर्म है. सो इट्स बेस्ट दैट यू अवॉइड वीट एंड मैदा. इंस्टेड यू कैन हैव अ मल्टीग्रेन रोटी और बाजरी जवारी की भाकरी वगैरह आप खा सकते हो. एंड स्टार्ट लिमिटिंग योर इनटेक ऑफ राइस एज वेल बिकॉज मेरा इंसुलिन भी थोड़ा सा बॉर्डर लाइन डायबिटिक के आसपास आया था. सो दैट इज़ वाई शी टोल्ड मी कि आप अभी तक डायबिटिक नहीं हो बट अगर आप ये सारे प्रिकॉशंस नहीं लोगे देन यू कैन स्टार्ट गेटिंग डायबिटीज एंड दैट इज व्हेन यू विल हैव टू स्टार्ट विद मेटफॉर्मिन अगेन. ऑल्सो गाइस शी हैज एडवाइज्ड मी टू अवॉइड ईटिंग फ्रूट्स विच आर वेरी शुगरी एंड स्वीट जैसे कि बनाना, मैंगो, चिक्कू. एंड शी हैज टोल्ड मी कि कोई भी फ्रूट का जूस बनाने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज एक्चुअली आपको न्यूट्रिएंट्स तो बहुत ही कम मिलेंगे उसमें. यू आर बेसिकली कंज्यूमिंग शुगर्स आउट ऑफ द फ्रूट एंड यू आर थ्रोइंग अवे द फाइबर्स. इसीलिए शी हैज टोल्ड मी टू जस्ट स्टिक टू नारियल पानी इन केस अगर मुझे कुछ पीने का मन करता है तो. एंड एवरीथिंग एल्स दैट यू कैन पॉसिबली थिंक ऑफ जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स, जंक फूड, वो सब ऑफकोर्स मुझे लिमिट करने के लिए बोल दिया गया है. एंड इवन घी भी ज़्यादा नहीं कंज्यूम कर सकते. यू कैन हैव प्रोबायोटिक्स जैसे कि दही, छाछ. Also guys, when I visited her clinic, I told her that my weight is somewhere around 79 kgs and it's been like 3 weeks. I have already lost 3 kgs. Actually मेरा weight 75 kg हो चुका है, so it's technically 4 kgs that I have lost. So yeah, it is definitely working for me, but this is not just the case that you have to follow a certain kind of diet. मैं इसके अलावा भी exercise भी कर रही हूँ. Nowadays I've started going for walks in the morning. मेरे घर पे एक बाइक भी है जिसका मैंने रिव्यू किया अपने चैनल पे. मैं उस पर रोज़ 500 कैलोरीज बर्न करती हूँ. Then I take the stairs. So there are a lot of changes that I have made because I really want to get out of this situation and it's taking a toll on my mind as well. So she explained it to me कि ये सारी चीज़ें अगर आप hand in hand करो तो you will gradually see the difference and ये एकदम drastically change नहीं हो जाएगा and you shouldn't be going for fat diets. So yeah, that is all that she has recommended me and I really wanted to share. So basically I wanted to tell you all कि अगर आपको skin issues है तो go to a dermat, अगर आपको hormonal issues है go to an endocrinologist, and अगर आपको fertility issues है then you need to see a gynecologist. So I hope this video will help you all and this has been helping me. So stay tuned for my laser journey as well, which I'm going to share next. So yeah, I'll see you in my new video. तब तक के लिए goodbye and take care.